Today we are going for uh, third experiment, and that is an experiment from the chapter again number 1. वाटर का जो चैप्टर चल रहा है आपका, उसमें से ही ये प्रैक्टिकल भी करना है आपको। और ये जो प्रैक्टिकल है आपका, वो alkalinity based practical है. This is the practical based on alkalinity. Now there is a term called alkalinity. तो सबसे पहले अपने बुक में सब लोग एक्सपेरिमेंट 3 लिख दीजिए। चलिए अपनी रिकॉर्ड बुक में लिखते जाइए फटाफट। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लेंदी है, तो प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप करिएगा। प्रैक्टिकल नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव लिखिए फर्स्ट। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 from a given mixture of sodium carbonate and bicarbonate by using 0.1 normal HCl. Okay. Done? Okay. Yes, sir. Now, let's move to the towards the introduction part. ये नहीं लिखना है अभी। Basically, what is alkalinity? It is an alkaline nature of water. Basically, हम लोग alkalinity of water determine कर रहे हैं. So it is called an alkaline nature of water, and this alkaline nature can be possible with these three ions: hydroxide, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये तीन आयन की वजह से आपकी अल्कलिनिटी आती है। कोई भी बेसिक चीज ले लो तो उसमें यही चीज होगी। ठीक है। सो दैट इज योर अल्कलाइन नेचर ऑफ वाटर, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू these three ions. It is also called as a buffering capacity of water body. ये इसकी एक डेफिनेशन भी है। अगेन, it is a measure it measures the ability of water to, you know, neutralize the H plus ions. It means if my water is basic, definitely मेरा पानी अगर बेसिक है तो HCl या H2SO4 या HNO3 जो भी H plus ions को न्यूट्रलाइज करेगा, right? And because of all these reasons, alkalinity is very important for to learn. क्योंकि alkalinity, जैसे पानी का बहुत ज्यादा बेसिक पीएच है तो वो पानी हम पी नहीं सकते, राइट? क्योंकि इवन एक्वेटिक सिस्टम, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पीएच। एक्वेटिक सिस्टम आपका पीएच पे काम करता है। अगर पीएच बढ़ा दिया तो भी अंदर मछलियां मर जाएगी या एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे, कम कर दिया तो भी मर जाएंगे। तो एक पीएच मेंटेन होना चाहिए, राइट? एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग दिस alkalinity topic. It is again important during the softening of process, right? Softening process जो आपका हम लोग पढ़ते हैं, जियोलाइट है, लाइम सोडा है, आयन एक्सचेंज है, राइट? ये सारे प्रोसेस में भी ये काम में आता है। बेसिकली देर आर, you know, three major ions, and they can be in the combination or singly possible, right? We can say that if my water is alkaline, then the water can have hydroxide single, या only hydroxide, only carbonate, and only bicarbonate. This is quite possible. Or it can be possible in the combination also, that hydroxide and carbonate possible, carbonate and bicarbonate possible. Then why not here it is written bicarbonate hydroxide, bicarbonate and hydroxide भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, तो ये लिखा नहीं है या भूल गए हैं। और फिर कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो तीनों भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट
carbonate and hydroxide. तो ये दो ऑप्शन लिखना भूल गए हैं? नो, इट इज नॉट. These two options are not possible. Ruled out हो गए ये दोनों options. क्यों? Because bicarbonate and hydroxide, if they are simultaneously present, they will produce H2O plus carbonate. तो ये तो आपकी यही हो गई ना. And if this is correct, then also bicarbonate, carbonate and hydroxide. Bicarbonate, hydroxide and carbonate तीनों इकट्ठा करेंगे. 3 minus plus plus -2, वो भी तो आपको कार्बोनेट ही देगा ना अल्टीमेटली. तो ये कार्बोनेट, ये भी तो कार्बोनेट है. सो बेसिकली these two possibilities are ruled out. Then only 5 possibilities are left: hydroxide only, carbonate only, bicarbonate only, and hydroxide and bicarbonate, and carbonate and bicarbonate. If out of these 5 case is there, any one case is there in our water to be present, we can call that water as an alkaline water. हम वो पानी को अल्कलाइन पानी बोलेंगे, राइट. बेसिक वाटर बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों तीन आपकी पानी में आपके अल्कलिनिटी इंपार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स हैव दिस टिपिकल रिएक्शंस. ओके, ये रिएक्शंस आपको लिखने हैं. चलिए ये फटाफट रिएक्शंस लिख दीजिए, 4 रिएक्शंस. नाउ वी कैन, यू कैन जस्ट कंटिन्यू, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपको. नाउ वी कैन neutralize these ions if they are present. We can neutralize with any acid, say for HCl. HCl से हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, right? So if OH minus ion is there, it can be neutralized with H plus and it will give you water. If carbonate ion is there, it can be neutralized by H plus and it can give you bicarbonate and water. And if bicarbonate is there, then it can react with H plus and it can give you carbon dioxide and H2O, right? Now, any type of possibilities are there. As we discussed, bicarbonate and hydroxide ions can be, can be a problematic combination. Why? Because ultimately it is OH minus and HCO3 minus it gives carbonate and water. So basically we can say simultaneous presence of hydroxide and bicarbonate is not possible, or all the 3 ions cannot be possible at the same time. तीनों साथ में नहीं हो सकते हैं, या ये दोनों भी साथ में नहीं हो सकते हैं. और तीसरा, hydroxide and bicarbonate alkalinity is actually carbonate alkalinity. ये सारे में रीजन क्या आएगा? यही same equation you have to write and then you have to conclude the answer, right? So these 4 reactions you have to write in the part of reaction. आपने ऑब्जेक्टिव लिख लिया, उसके बाद आपने रिएक्शंस लिखे, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डिटरमाइन दिस अल्कलिनिटी. कैसे डिटरमाइन करेंगे अल्कलिनिटी को? तो वी कैन टाइट्रेट the solution, that means water solution containing alkalinity, with this HCl, hydrochloric acid. But here we have to use 2 different indicators. Here we have to use 2 different indicators, and that is phenolphthalein and methyl orange, but in the single titration. ये दोनों इंडिकेटर्स आपको यूज करने हैं, लेकिन एक ही टाइट्रेशन में यूज करने हैं आपको. इसका मतलब द टाइट्रेशन हैज
another name that is called dual indicator titration. इसको हम ड्यूअल इंडिकेटर टाइट्रेशन कर बोलते हैं, जिसमें दो इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे. ड्यूअल इंडिकेटर टाइट्रेशन. जनरली phenolphthalein can handle a hydroxide ion, this one, and कार्बोनेट का वो हाफ करेगा. वो मैं बताऊंगा कैसे. इट कैन हैंडल हाइड्रोक्साइड एंड हाफ ऑफ द कार्बोनेट. तो बाकी का हाफ कौन हैंडल करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? क्योंकि कार्बोनेट में से बाइकार्बोनेट बन रहा है, तो बाकी का बाइकार्बोनेट जो बनेगा, दैट बाइकार्बोनेट विल बी हैंडल्ड बाय मिथाइल ऑरेंज. दिस विल बी हाफ विथ पी, दिस विल बी फुल विथ पी. लेकिन बाइकार्बोनेट को मिथाइल ऑरेंज हैंडल करेगा. क्यों? बिकॉज पी स्टैंड्स फॉर फिनोफ्थैलीन. फिनोफ्थैलीन का पीएच है अराउंड 8 to 10 और मिथाइल ऑरेंज का पीएच है 3.1 to 4.5. It means between this pH range, it gives some color change, visible and very good color change, right? Basically होता ये है कि जब हम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो पहले बाइकार्बोनेट बना देता है. Carbonate will be converted into bicarbonate according to the second equation you can see on the screen. Now, once the bicarbonate is formed, the pH drops down from 8 to 10 pH है, वहां से आपका pH आ जाता है 7 to 8. Your pH will become 7 to 8 when bicarbonate is formed. When bicarbonate is formed, your pH will drop from 8 to 10 to 7 to 8. Now, 7 to 8 is not the range of phenolphthalein where it can give you very good color change, right? So, in this case, you have to go for the another. आधा हो गया आपका, कार्बोनेट में से बाइकार्बोनेट तो बन गया, लेकिन अब बाइकार्बोनेट में से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है तो आपको दूसरा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा. फ्रॉम देयर यू हैव टू यूज मिथाइल ऑरेंज. क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? टोटल न्यूट्रलाइजेशन. एंड टोटल न्यूट्रलाइजेशन पे आपका pH 7 हो जाएगा, राइट? नाउ वन मोर ड्रॉप ऑफ एनी एसिड will drop down the pH in the acidic range around 3 to 4, 5 range, where methyl orange is very active and that can give the reading. तो बेसिकली ये पूरा जो खेल है, ये पूरा जो गेम है, ये पूरा जो टाइट्रेशन है, उसमें इंडिकेटर का जो यूज है, उसको चॉइस जो है, वो पूरा जो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर. कैन एनीवन टेल मी कौन से फैक्टर पे पूरा काम करता है? पीएच पे काम करता है, करेक्ट. एनीवन फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है. करेक्ट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पोटेंसी भी बोलते हैं कभी कभी, राइट? सो पीएच के ऊपर पूरा डिपेंड करता है. आपका पूरा पीएच चेंज जो है वो सही होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द कलर चेंज. सो अगर मेरा हाइड्रोक्साइड आयन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन वर्क्स बिटवीन द 8 to 10 pH, वेयर फिनोफ्थैलीन इज वेरी कंफर्टेबली यूज्ड, can be used very comfortably, right? So if hydroxide ion is there, we can go for this phenolphthalein. Even we can go for methyl orange, no problem, because methyl orange का final pH range क्या है? 3.1 to 4.5, मतलब 3 से 4.5 के आसपास है. अल्टीमेटली हम जब न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड से, तो मेरा पीएच फाइनल कहाँ जाने वाला है? एसिडिक पीएच में, जहां पर मेरा कलर चेंज आएगा. तो मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज फॉर हाइड्रोक्साइड ऑल्सो, राइट? मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज फॉर कार्बोनेट ऑल्सो, and methyl orange can be used for bicarbonate also. It means methyl orange has that ability to give the total alkalinity. क्यों? क्योंकि उसका पीएच ही इतना है. जैसे कि मेरे पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट है, ठीक है,
अब मैं उसको टाइट्रेट कर रहा हूं विथ HCl, राइट। तो शुरुआत मेरी क्या होगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, राइट, हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, और बेसिक मीडियम में फिनोल्फथैलीन का कलर कैसा होता है, पिंक, और मिथाइल ऑरेंज एसिडिक रेंज में कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। So if I am using phenolphthalein, it will give me what? It will give me pink color. Now I will titrate with HCl, तो हाइड्रोक्साइड पूरा टाइट्रेट हो जाएगा आपका आराम से, राइट। लेकिन कार्बोनेट आधा ही टाइट्रेट होगा। उसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज टू गेट द एंड पॉइंट। बट इफ यू आर यूजिंग मिथाइल ऑरेंज डायरेक्टली, तो क्या होगा, आपको टोटल अल्कलिनिटी मिल जाएगी, क्योंकि सीधा एंड पॉइंट आपको क्या कहां मिलेगा, सीधा एंड पॉइंट आपको 3.5 3 से 4.5 के बीच में ही मिलेगा, राइट। सो यू विल गेट टोटल अल्कलिनिटी when your hydroxide and carbonate completely they will be neutralized। यहां तक समझ में आ रहा है, सब लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है कि क्यों ये ड्यूअल टाइट्रेशन हमको करना पड़ रहा है। अगर मुझे टोटल अल्कलिनिटी पूछिए तो मैं कोई मिथाइल ऑरेंज लेके सीधा निकाल सकता हूं कि भाई इतने ml टोटल अल्कलिनिटी है। लेकिन अगर आपको पूछा है कि भाई कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के मिक्सचर में कार्बोनेट कितना, बाइकार्बोनेट कितना, तो फिर देन यू हैव टू गो फॉर द ड्यूअल टाइट्रेशन, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ ड्यूअल टाइट्रेशन। अच्छा, यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। सब लोगों को क्लियर हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो? आई एम ट्राइंग वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। आर यू गेटिंग द पॉइंट, और इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम और एनी डिफिकल्टी, कुछ चीज समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ है? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। क्लियर हो रहा है सबको? बहुत सिंपल सी बात है। फिनोल्फथैलीन कैन हैंडल हाइड्रोक्साइड अल्कलिनिटी, वो उसको रिमूव करके, मतलब न्यूट्रलाइज करके कलर चेंज दे सकता है। इट कैन हैंडल हाफ ऑफ द कार्बोनेट, बट हाफ ऑफ द कार्बोनेट विल बी हैंडल्ड बाय मिथाइल ऑरेंज, एंड बाइकार्बोनेट तो एक्सक्लूसिवली मिथाइल ऑरेंज से ही होगा, क्योंकि वंस योर बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड देन यू कैन नॉट यूज फिनोल्फथैलीन, क्योंकि वो तो पिंक कलर देगा ही नहीं। बिकॉज आपका जो बाइकार्बोनेट बनता है, वो बाइकार्बोनेट की जो पीएच रेंज है वो 7 से 8 आ जाती है, और 7 से 8 में आपका मिथाइल दिस फिनोल्फथैलीन इज नॉट वर्किंग, राइट। आ गया समझ में एकदम क्लियर कि नहीं? सबको क्लियर हो गया भाई? क्योंकि ये टिपिकल प्रैक्टिकल है, याद रखिए, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा ये प्रैक्टिकल। ओके, चलिए, लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट हम बाद में करेंगे। यस, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द एपरेटस एंड केमिकल। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज कंप्लीट दिस, देन प्रोसीजर के बाद करते हैं हम लोग। चलिए, एपरेटस एंड केमिकल्स लिखिए। एपरेटस, इट इज ब्यूरेट, पिपेट, pipeting pump, conical flask, beaker, etc. And chemicals, we are going to use 0.1 normal HCl, which we will fill it in burate, that is our titrant, mixture of Na2CO3 and NaHCO3. It means आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट निकालना है इसमें, that is the last combination we have seen in that previous slides। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिक्सचर आपको दिया जाएगा, phenolphthalein, methyl orange, and distilled water as usual for the washing purpose. So phenolphthalein and methyl orange, these are the two different indicators we are going to use in this titration, and that's why आपका
जो टाइट्रेशन है वो ड्यूअल टाइट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको इट इज कॉल्ड अ ड्यूअल इंडिकेटर टाइट्रेशन। इट इज कॉल्ड अ ड्यूअल इंडिकेटर टाइट्रेशन। ओके, फाइन। यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने यहां तक लिख लिया? यस सर। ओके, प्रोसेस हम देख लेते हैं फटाफट, और प्रोसेस के बाद हम जाएंगे वीडियो पे। इसका जो टेबल है वो भी एक टिपिकल टेबल है। ठीक है, तो वो फिर हम बाद में देखेंगे, अभी पहले वीडियो देखेंगे इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो के बाद हम इसको समझेंगे। और सी, you have to fill the burette with 0.1 normal HCl. You have to take 10 ml of mixture. You are taking 10 ml of mixture in conical flask of sodium carbonate and carbonate, and then you have to add 2 to 3 drops, maximum 1 drop is okay, 1 to 2 drops or 2 to 3 drops of indicator phenolphthalein. Now you have to titrate this mixture against 0.1 normal HCl. When your color pink is disappeared, it means it will be converted into colorless, right? Then you have to measure the first end point, and that end point is called as A, right? Now do not discard your solution. आपको वो पानी सॉल्यूशन को डिस्कार्ड नहीं करना है, और ना ही आपका ब्यूरेट का जो लेवल है उसको आपको जीरो करना है, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, राइट? यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट लेवल for the second titration. So then we will add 2 to 3 drops of methyl orange indicator, and then continue the titration from the same level of the burette till the color change from yellow to orange is obtained. That is your reading B. This is your final reading. Right? And you have to repeat again the same thing. You have to repeat the titration for 2 to 3 times until you get your constant reading. Right? So in the same titration, without discarding the solution, without leveling the burette at zero, you have to continue the titration, and then you have to find out the concentration of this. देखो यहाँ का ये टेबल दिखाता हूँ। ये टेबल जो है वो थोड़ा टिपिकल है, ये टेबल, राइट? दिस टेबल इज टिपिकल। ब्यूरेट पिपेट हमको पता है। हर एक में आपको दो दो रीडिंग्स लिखने हैं। पीएच मीन्स फिनोफ्थैलिन, एमओ मीन्स मिथाइल ऑरेंज, right? So here you have to write initial reading of phenolphthalein and initial reading of methyl orange. Similarly, final reading of methyl orange and final reading of phenolphthalein. It means for both phenolphthalein as well as methyl orange, you have to take pilot reading and you have to take micro readings both in a single titration, क्योंकि हम दो readings ले रहे हैं ना. So this reading, you know, this reading will be your A reading and this reading will be your B reading always, right? So you have to report A as phenolphthalein reading and B as methyl orange reading constant, right? तो अब हम लोग वीडियो पे जाते हैं। मैं इसको शेयरिंग को बंद करता हूं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द वीडियो। देखेंगे पूरा वीडियो, अच्छे से देखेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद ये हम प्रैक्टिकल आगे समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा ये है, समझना है इसको बहुत अच्छे से। Okay, can you see the screen now? यस सर। सर फाइन, चलिए। मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा हूं, साथ साथ में आपको दिखा भी रहा हूं, ठीक है, एज यूजुअल। So objective we have already written, right? So
you have to determine the amount of sodium carbonate and bicarbonate from a given mixture of sodium carbonate and bicarbonate. And obviously, it's that by titrating your solution with zero point 0.1 normal HCl, right? Okay, so here it is your requirements, chemicals and apparatus. Yes, zero point 0.1 normal HCl, mixture of Na2CO3 and mixture of bicarbonate, NaHCO3, phenolphthalein, methyl orange, burette, pipette, conical flask, beaker, as usual, whatever the normal things are required. Okay. Okay, these are the chemicals which will be required. 0.1 normal HCl is a titrant which we will fill in a burette, sodium carbonate and bicarbonate mixture, phenolphthalein indicator, methyl orange indicator, and distilled water as usual for the washing. This is a burette, that is a funnel, your conical flask, and pipette with your pipe pipetting pump. Again, repeating the same thing, do not suck anything with a mouth, right? This is your basic requirement, how to fill, burette में क्या भरना है, what to fill, conical flask में क्या भरना है, indicator कौन सा use करना है, and उसके short form दिए हैं, if it is pH, then it is not that potential of hydrogen, it is pH, it means phenolphthalein, and methyl orange is MO. These are the reactions which you have already written for the neutralization of different ions. So first, sorry, already we have filled the burette with HCl. Now we are taking the mixture of sodium carbonate and bicarbonate. You can see the mixture of sodium carbonate and bicarbonate, and 10 ml we are pipetting out in your numerical as you have done in your hardness. It can be different volumes. Here you can see the volume of burette has been set at 0 level. Already it has been done. Now the first indicator I am going to use is phenolphthalein. These all titrations we have performed in Nirma University laboratory. So now your color has been changed from colorless to pink because the concentration solution is basic, right? So here it is your first reading, pilot reading, that is for the phenolphthalein. It will be converted colorless from pink to colorless. Yes, it is colorless. You can just see the reading. Yes, pilot reading is 4. It means your reading must be 3 to 4, between the 3 to 4. Now I am adding the second indicator and I am not changing the level of burette and I am not discarding the solution again. I am adding methyl orange in the same solution. मैंने नया नहीं लिया है, ठीक है? So now I will start with the same 4 ml level. Yes. And now this will be converted into orange color.
See the color, we are getting little shade of orange, right? But still this is not orange. This is mango yellow. Orange is now. You will get, yes. You can see the orange color, right? This is the color change from yellow to orange because once you have methyl orange, that time your, yeah, this is the reading. The reading is 10 ml. It is your second pilot reading. So your first pilot reading is 4 and second pilot reading is 10. Again, I am going to perform the same titration for the accurate reading. You have to perform it for 2 to 3 times. Yes. Again, I am going to take the volume of mixture 10 ml. Phenolphthalein, first indicator. Color is obtained because your solution is basic. Now I am going to be very careful. Up to 3 ml I can add the level. Again, I have set the level 0. And now I have started up to 3 ml I can add directly because we know that up to 3 ml reading is not going to come. Now, see, it is light pink color shade is there still. Little bit more, 1 or 2 drops maximum will be added and then it will be colorless. Okay, so it is now colorless. Now we will measure the reading because it should, pilot is 4, so मेरा reading 3-4 से बीच में आना चाहिए. Yes, it is coming around 3.2, 3.1 and 3.2. Yeah, 3.2 is your accurate reading. Okay, now second reading we will say, go for the second reading. Yes, methyl orange. Now this is going to give you the second reading with methyl orange. So now from 3.2 we have stopped, right? From the same volume we will start our next reading without discarding the solution also. Up to 9 ml you can just add because we know that our pilot reading is 10 ml. So 9 ml तक कुछ नहीं आने वाला है, color change नहीं आएगा. And after 9 ml you have to be very careful. Yeah, this is not a color, orange color नहीं है ये mango yellow color है, याद रखिए. तो ये दोनों कलर चेंज अलग अलग है. अभी एक आध ड्रॉप और जाएगा तो कलर चेंज बढ़िया से आ जाएगा. यस, वन मोर ड्रॉप ऑफ कलर चेंज. यस, this is your orange color, very nice, beautiful orange color, right? So what is the reading now? Because it should be 9 to 10, between the 9 to 10. Yes, it is 9.5. Okay, so पहला रीडिंग हमारा क्या था? 3.2 and दूसरा रीडिंग क्या था? 9.5. So now as usual, excess of HCl we have filled in the burette, we will take it out and keep it safe. It can be used for the next titration. Once the practical is over, you have to wash everything with distilled water we are using for washing. Pure अच्छा सा पानी wash करना है आपको. So now we will wash the pipettes and burettes also similarly as we have done in our
प्रीवियस 2 प्रैक्टिकल्स अच्छे से अंदर से वॉश करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने इसमें HCl लिया था, so it should be properly washed or the waste water should be discarded properly. पिपेट को प्रॉपरली वॉश करके रखना है, ब्यूरेट को वॉश करके रखना है, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड। जैसे आपने लिया था वैसे ही होना चाहिए। यस, funnel should be properly washed, kept properly at proper place. तो आपका ब्यूरेट वॉश हो चुका है। See how carefully you have to perform the practical, how sincerely you have to perform the practical. Again, everything is kept at its own proper place. इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिकल करना है, अगर आपको प्रैक्टिकल कभी करना आया है तो। नाउ दिस टेबल वी विल डिस्कस इन अवर थियरी पार्ट, राइट? अभी हम लोग थियरी पढ़ेंगे तब बताएंगे। Okay, again I am sharing my presentation. Yes. So now you have to write this table. चलो ये भी करते जाओ फटाफट। ऑब्जर्वेशन लिखिए और ब्यूरेट पिपेट कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, राइट? So my pilot reading here was for phenolphthalein it is 0. For phenolphthalein it is 0. And 4 is my pilot reading और 4 is my final reading. अगेन मिथाइल ऑरेंज का भी 0 ही लेना है। वो क्यों, मैं बताता हूं आपको। और यहां पर आपका 10 आया था और यहां पर भी आपका 10 आएगा, राइट? You can just write with me, you can just complete this task with me only. Now we have taken total 3 reading, 1 reading, but हम लोग इसमें 3 लिखेंगे। Remember, all these initial readings for methyl orange as well as phenolphthalein should be 0. Why 0? I will explain. So phenolphthalein का रीडिंग कितना आया था? 3.2 and methyl orange का 9.5. Similarly, सब में वही लिखेंगे हम लोग, 3.2, 9.5। तो रीडिंग्स लिखने इसमें। देखिए इसका जो टेबल है वो टिपिकल है थोड़ा सा। 9.5 and 3.2, 9.5. So what is my constant reading phenolphthalein? A is 3.2. And what is the constant reading methyl orange? B, that is 9.5. तो इस तरह से आपका टेबल लिखा जाएगा। तो काइंडली कंप्लीट द टेबल। फटाफट कंप्लीट करो। चलो, खत्म होता है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलाता हूं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है, अभी समझना है हमको। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आएंगे आपके। सो एनी केस you are, whenever you are performing the titration like this, you have to go for the dual titration. What is the advantage of dual titration? Can we do this titration singly? The answer is yes. You can do the same titration singly. कैसे? जैसे मैंने 10 ml सॉल्यूशन लिया और उसमें मैंने फिनोप्थेलिन डाला और उसको टाइट्रेट किया, दैट इज माय रीडिंग ए। एंड सिमिलरली अगेन 10 ml मैंने सॉल्यूशन लिया, उसमें अब मिथाइल ऑरेंज डाला, and then I have titrated with HCl exactly same, and that will give me the reading B. So what is the difference between the single titrations and this dual titration? उसमें डिफरेंस या तो हम बोलेंगे एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये है कि एक ही बार में आपके 2 टाइट्रेशन हो जाते हैं, वहां पर 2 बार आपको करना पड़ता है अलग अलग। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, टाइम सेव होता है। दूसरा, केमिकल सेव होते हैं, राइट? एक बार में आपने एक किया, फिर दूसरी बार में दूसरा किया, तो आपके केमिकल ज्यादा जाएंगे, 2 बार पिपेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें केमिकल्स भी ज्यादा जाते हैं।
एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम। इसका रीजन क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि फिनोल्फथालीन आपको कार्बोनेट का आधा ही हिस्सा टाइट्रेट करके दे रहा है और बाकी का सारा हिस्सा कौन कर रहा है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ही कर रहा है ना बाइकार्बोनेट बनने के बाद तो, राइट? और जब आप अगर मिथाइल ऑरेंज पहले डाल दोगे, जैसे सिंगल सिंगल करोगे, तो मतलब कि फिनोल्फथालीन जब आप करोगे तो आपको आधा ही टाइट्रेशन मिलेगा एंड दैट इज ओनली ऑफ कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का तो टाइट्रेशन ही नहीं मिलेगा आपको, सो दैट इज नॉट गुड। उसके लिए फिर दूसरा टाइट्रेशन करना पड़ा आपको। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज का। हमको पता है कि मिथाइल ऑरेंज का रेंज तो 3 से 4 के 4.5 के आसपास है, तो वो सीधा शुरू करेगा जीरो से, तो वो सीधा आपको रीडिंग बी देगा, बीच में कोई रीडिंग ए आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपको टोटल अल्कलिनिटी दे रहा है, टोटल अल्कलिनिटी दे रहा है, राइट? मिथाइल ऑरेंज का जो रीडिंग आप सिंगल सिंगल करते हो, तो मिथाइल ऑरेंज का रीडिंग आपको टोटल अल्कलिनिटी दे रहा है, राइट? अब आगे देखते हैं, तो ये जो फिनोल्फथालीन से आधा आया उसका क्या? तो सिंपल सी बात है, फिनोल्फथालीन से जो आपका रीडिंग आधा आया ये वाला, राइट, 3.2 वाला, 3.2 को डबल करूंगा तो पूरा कार्बोनेट बन जाएगा कि नहीं मेरा? बताओ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा तो फिनोल्फथालीन से जो रीडिंग आया वो तो आधा ही कार्बोनेट हुआ, राइट? आधा कार्बोनेट अगर मैं उसको डबल करता हूं तो जो भी रीडिंग मेरा 3.2 आया उसको मैंने डबल किया, तो मेरा कार्बोनेट का रीडिंग बन गया कि नहीं? सो माय कार्बोनेट रीडिंग शुड बी 2a। ए को डबल कर दो तो मेरा कार्बोनेट रीडिंग बन गया, राइट? तो फिर अब बाइकार्बोनेट कैसे निकालूंगा मैं? हाउ आई विल कैलकुलेट बाइकार्बोनेट? कोई बात नहीं, मेरे पास बी रीडिंग है ना। बी रीडिंग इज व्हाट? टोटल अल्कलिनिटी। उसमें से बी रीडिंग में से मैं 2a रीडिंग माइनस करूंगा। क्या है ये? कार्बोनेट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? बाइकार्बोनेट। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा टोटल अल्कलिनिटी आया वो 9.5 आया और कार्बोनेट का अल्कलिनिटी आया ये, जैसे आप लोगों ने किया था कि नहीं, टोटल हार्डनेस आया उसमें से परमानेंट निकाल दिया, तो बचा क्या? टेम्पररी। वेरी सिंपल आंसर इज देयर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग मिथाइल ऑरेंज इनिशियल पॉइंट 0 बिकॉज इट इज गिविंग अस टोटल अल्कलिनिटी, क्योंकि वो ए रीडिंग नहीं देता है सिंगल लेते तो, वो सीधा बी रीडिंग देता है। इट इज गिविंग मी डायरेक्टली बी रीडिंग, right? Yes, Romit, it is Romit, sorry, Manav, it's your answer. Why we are not taking difference of 6? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का रीडिंग अगर हम 0 करेंगे तभी तो हमको टोटल अल्कलिनिटी 9.5 मिलेगी। ये तो हमको फिनोल्फथालीन का रीडिंग लेना था, इसलिए हमने 0 से 4 तक फिनोल्फथालीन लिया, क्योंकि हमको आधा कार्बोनेट निकालना था, राइट? और बाकी का बाइकार्बोनेट के लिए तो हम मिथाइल ऑरेंज ही यूज करने वाले थे। अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज पहले ही डाल दिया होता विदाउट एडिंग फिनोल्फथालीन, इनिशियली मैंने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया होता, तो मुझे क्या होता पता है? ए रीडिंग मिलता ही नहीं, मेरे को सीधा बी रीडिंग मिलता, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज कार्बोनेट पूरा और बाइकार्बोनेट पूरा सबको न्यूट्रलाइज करके सीधा बी रीडिंग देता। तो इसलिए
this is the reason why we have to take methyl orange as a zero, right? मिथाइल ऑरेंज को इसीलिए जीरो लेना है क्योंकि हमको टोटल अल्कलिनिटी निकालनी है, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो टोटल अल्कलिनिटी ही देता है, वो कोई बाइफर्केशन नहीं देता है बीच में, राइट? दैट इज द रीजन कि मिथाइल ऑरेंज इज यूज फॉर टोटल अल्कलिनिटी और फिनोप्थेलिन इज यूज फॉर हाइड्रोक्साइड और हाफ ऑफ द कार्बोनेट अल्कलिनिटी, राइट? तो व्हाट इज योर रीडिंग फॉर नाउ? हमको कैलकुलेशन भी करना है, ठीक है, एक कैलकुलेशन हमको करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम इसका? तो देखो यहां पर आया हमारा हाफ ऑफ द Na2CO3, ये भी लिखते जाओ, चलिए ये भी लिखते जाओ। हाफ ऑफ द सोडियम कार्बोनेट ऑफ मिक्सचर इज न्यूट्रलाइज बाय AML। AML हमारा कितना आया था? 3.2। तो 2A मतलब 3.2 इंटू 2 करेंगे हम, दैट इज योर टोटल कंप्लीट कार्बोनेट, राइट? तो नॉर्मालिटी ऑफ कार्बोनेट पहले निकालेंगे, उसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीधा ग्राम पर लीटर आ जाएगा, राइट? So normality of carbonate is nothing but N1V1 equal to N2V2. N1V1 equal to N2V2. N1 आपका अगर HCl है तो ये आपका सॉरी N1 जो है आपका कार्बोनेट है तो HCl ले लो आप दूसरा या जो भी है। तो यहां पर आपने N1 कार्बोनेट लिया और HCl ले लिया, ये भी लिखते जाइए आप पूरा। तो N1 हमको पता नहीं है, ढूंढना है। V1 हमने 10 ml पिपेट आउट किया था। N2 हमको पता है HCl का 0.1 नॉर्मल दिया हुआ है, और V2 क्या आएगा? दैट इज योर 2A, तो आपने लिया, दैट इज योर 2 इंटू 3.2 डिवाइड, राइट? तो आपका जो नॉर्मालिटी आएगा X, वो क्या आएगा जरा मुझे कोई बता सकता है कैलकुलेट करके? यस, एनीवन कैन रिपोर्ट इट टू मी। क्या आ सकता है? 0.064। यस, ओके, सो इट इज 0.064। अब इस 0.064 नॉर्मालिटी को आप इसका इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3.392। यस, so your answer is 3.392 gram per liter. Remember here sodium carbonate is your divalent compound, so equivalent weight क्या होगा? आधा होगा molecular weight से। इसका जो equivalent weight होगा वो क्या होगा? molecular weight से हाफ होगा, ओके? molecular weight का हाफ होगा, इसका molecular weight है 106, इसका हाफ करना है 53, right? Similarly you can go for the N1V1 इक्वल टू N2V2। अब मैं बाइकार्बोनेट के लिए कर रहा हूं, NaHCO3 के लिए कर रहा हूं, दिस इज योर HCl। सो N1 हमको पता नहीं है, ढूंढना है। V1 हमको पता है 10 ml लिया हुआ है, N2 हमको पता है 0.1 नॉर्मल दिया है, एंड V2 क्या आएगा आपका? V2 आएगा B, टोटल अल्कलिनिटी माइनस 2A, राइट? सो योर आंसर क्या आएगा? इसको Y ले लेते हैं, आंसर आएगा बताइए, what will be the normality of bicarbonate? B minus 2A, that means 9.5 minus 6.4 कितना होगा? तो इसकी नॉर्मालिटी आएगी 0.3031, करेक्ट, राइट? और अब इस 0.031 को आप उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके इक्विवेलेंट वेट से, बट हियर योर बाइकार्बोनेट इज मोनोवेलेंट, सो इक्विवेलेंट जो वेट होगा इट विल बी सेम एज मॉलिक्यूलर वेट। तो 84 इज योर इक्विवेलेंट वेट। चलिए फटाफट बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा? 2.604। 0.604 ग्राम पर लीटर, यस, राइट? तो ये आपका आंसर आएगा, राइट?
These two answers you have to write in the table. कि नॉर्मलिटी कितनी आई अपनी यहां पर 0.064 0.064 और इसकी आई 0.031, राइट। और ग्राम पर लीटर कितना है? नीचे आएगा ना 3.392। हाँ वो नीचे हाँ, आएगा सॉरी 0.3 0.031 and this will be 3.392 and 2.604. This is your result table 2.604. आ रही है बात समझ में? इट्स वेरी सिंपल। हमने कार्बोनेट का रीडिंग निकालने के लिए जो आधा था उसको डबल कर दिया तो हमारा कार्बोनेट का रीडिंग निकल गया। बहुत सिंपल सी बात है। टोटल अल्कलिनिटी थी हमारे पास, तो टोटल अल्कलिनिटी में से कार्बोनेट का रीडिंग माइनस कर दिया तो आपका रीडिंग आ गया बाइकार्बोनेट का, राइट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आर यू गेटिंग ऑल? कैसे कैलकुलेशन करना है इसका? कुछ समझ में नहीं आया? कोई चीज आपको कोई? ये आपका रिजल्ट टेबल बनेगा एंड देन इट इज क्विज। सर यस, जो कार्बोनेट ने जो आधा फिनोल्फथलीन यूज किया उससे हमने एजम्पशन लिया ना कि अगर पूरा वो कार्बोनेट कितना यूज करता फिनोल्फथलीन। हाँ, राइट, करेक्ट। ओके एक सिंपल सी बात है ना, Na2CO3, तो एक Na को निकालने के लिए मुझे 3.2 ml लगता है, तो 2 NO को निकालने के लिए क्या लगेगा? स्टोइकियोमेट्री है ये तो पूरी 6.4, राइट। हाँ सिंपल, हाँ इजी, ओके। यस सर सो इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अब हमको एक टेबल पे जाना है। ये तो आपको कॉम्बिनेशन दिया था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का, तो ऐसा एक टेबल है आपका यहां पर। मैंने बोला 5 केसेस पॉसिबल है, राइट। और हमको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड क्या कर सकता है, कार्बोनेट क्या कर सकता है और बाइकार्बोनेट। तो इफ माय रीडिंग, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाता हूं ये थोड़ा सा इजीली। चलिए, अब मेरे को जो दिया हुआ है रीडिंग, उसके ऊपर से मुझे पता करना है कि व्हाट टाइप ऑफ अल्कलिनिटी इज प्रेजेंट, व्हाट टाइप ऑफ अल्कलिनिटी इज प्रेजेंट। आपको कोई रीडिंग दिया हुआ है तो पता चलना चाहिए। तो उसके लिए 5 केसेस है। दिस इज द टेबल ऑफ टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी। और ये टेबल आपको पूरा एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है, या तो 1 1 मार्क में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। दिस इज द टेबल ऑफ टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी। जैसे कि मैंने एक सैंपल लिया 10 ml का। अब मुझे नहीं पता है कि उसमें कौन सी टाइप की अल्कलिनिटी है, राइट। सो आई हैव टेकन 10 ml ऑफ सैंपल एंड मैंने उसमें फिनोल्फथलीन ऐड किया, राइट। अब फिनोल्फथलीन मैंने ऐड किया तो कलर ही नहीं आया, मेरा कलर ही नहीं आया। अब बताओ कौन से आयंस तीनों में से प्रेजेंट हो सकते हैं? सोचो पहले, इसको सोचने का है। जब आप इसको सोचोगे तो आपको एकदम इजी, ये गोखना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि फिनोल्फथलीन कौन सी अल्कलिनिटी हैंडल करेगा? हाइड्रोक्साइड पूरा करेगा और कार्बोनेट को आधा करेगा, आधा मिथाइल ऑरेंज करेगा, राइट। तो पी मतलब मेरा कलर आया ही नहीं, पिंक कलर। तो मतलब ये हो गया कि हाइड्रोक्साइड इज एब्सेंट, क्योंकि अगर हाइड्रोक्साइड होता तो कलर आता था। इवन कार्बोनेट इज ऑल्सो एब्सेंट, बिकॉज कार्बोनेट अगर होता तो कलर तो आता था, फिर आप बाद में आधा कार्बोनेट आप मिथाइल ऑरेंज से करते थे। तो इट्स वेरी सिंपल केस दैट इफ योर रीडिंग इट गिव्स P इक्वल टू 0, मतलब फिनोल्फथलीन के साथ कोई कलर नहीं देता है, दैट मीन्स बचा जो है वो बाइकार्बोनेट है एंड दैट कैन बी हैंडल्ड बाय मिथाइल ऑरेंज ओनली। बाइकार्बोनेट को आप फिनोल्फथलीन से हैंडल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ पीएच रेंज, राइट। सिमिलरली चलिए अब मैं दूसरा एक प्रैक्टिकल करता हूं। मेरा पहला रीडिंग जो है फिनोल्फथलीन का आ गया 5 ml, ओके। 5 ml मेरा रीडिंग आया, कलरलेस हो गया।
अब मेरा सेकंड पार्ट आएगा मिथाइल ऑरेंज डालने का। तो नाउ आई हैव एडेड मिथाइल ऑरेंज। कलर कौन सा आना चाहिए था? येलो आना चाहिए था, लेकिन सीधा ही ऑरेंज कलर आ गया। मतलब क्या हुआ कि जो 5 ml रीडिंग मेरा फिनोल्फथालीन के लिए आया, द सेम रीडिंग इज फॉर द मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि मेरे को ऐड करना ही नहीं पड़ा HCl। जैसे ही मैंने इंडिकेटर डाला कलर आ गया। तो 5 ml पे रुका हुआ है मेरा रीडिंग, और वहीं पर कलर आ गया मेरा। तो फिनोल्फथालीन का रीडिंग सेम एज मिथाइल ऑरेंज रीडिंग, इट इंडिकेट्स दैट हाइड्रोक्साइड आयंस आर प्रेजेंट। क्योंकि अगर कार्बोनेट होता तो वो आधा फिनोल्फथालीन से जाता, आधा मिथाइल ऑरेंज से जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, बाइकार्बोनेट का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि फिनोल्फथालीन में कलर आ गया है, राइट? तो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। सो यू हैव टू गो फॉर P equal to M case. That's where your hydroxide ions are present, right? Okay. The third case, चलिए, अब मैंने क्या किया, फिर से सैंपल किया, उसमें मैंने फिनोल्फथालीन डाला तो पिंक कलर आ गया। अब मैंने उसको टाइट्रेट किया और मेरा रीडिंग आया 5 फिनोल्फथालीन का, राइट? कलरलेस हो गया। येलो कलर लाने के लिए मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला, and then I continued the titration from the same step and I got the reading 10, exactly 10, डबल आ गया रीडिंग। जो भी है, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पहला रीडिंग क्या था? 5, और दूसरा रीडिंग क्या आया? 5। इसका मतलब कि एग्जैक्टली डबल रीडिंग कब आ सकता है? कि आधा कार्बोनेट फिनोल्फथालीन से हुआ और आधा कार्बोनेट मिथाइल ऑरेंज से हुआ, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज वेरी सिंपल कि फिनोल्फथालीन का आपका जो रीडिंग है वो डबल कर दो, या तो फिनोल्फथालीन का रीडिंग जो है मिथाइल ऑरेंज का रीडिंग है उसको आधा करो तो फिनोल्फथालीन का रीडिंग बनता है। मतलब कि मिथाइल ऑरेंज का जो फाइनल रीडिंग आता है इट इज एग्जैक्टली डबल देन द फिनोल्फथालीन रीडिंग। P इक्वल टू 1/2m और M इक्वल टू 2p, राइट? अगर आपको वॉल्यूम लेना है तो ये फॉर्मूला से वॉल्यूम लेना पड़ेगा, याद रखो। ये जो फॉर्मूला है इससे वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसमें ये जो वॉल्यूम आता है वो ले लो, इसमें ये जो वॉल्यूम आता है ये ले लो, इसमें जो फिनोल्फथालीन का वॉल्यूम आता है, राइट, तो उसको डबल कर दो। या तो फिर आप मिथाइल ऑरेंज के डायरेक्ट वॉल्यूम से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो इस केस में आपका कार्बोनेट डेफिनेटली प्रेजेंट है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम आ रहा है दोनों के। या तो मिथाइल ऑरेंज का हम देखते तो डबल आ रहा है, राइट? तो इट इज देयर फॉर carbonate is present. Okay, let's go for the next point कि अब मेरे फर्स्ट मैंने सैंपल लिया, उसमें फिनोल्फथालीन डाला, कलर आ गया पिंक कलर। मैंने रीडिंग लिया, ए रीडिंग मिल गया, कलरलेस हो गया। मिथाइल ऑरेंज डाला मैंने, और मिथाइल ऑरेंज से मेरा दूसरा रीडिंग बी आया। लेकिन जो मेरा दूसरा रीडिंग बी है, जिसको हम पी और एम भी बोल सकते हो, ए और बी या तो पी और एम, मेरा जो दूसरा रीडिंग बी है उसका जब मैं आधा करता हूं तो उससे भी ज्यादा फिनोल्फथालीन का रीडिंग आ रहा है। तो मतलब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि फिनोल्फथालीन का बहुत ज्यादा रीडिंग आ रहा है, तो इसमें हाइड्रोक्साइड तो होना चाहिए, साथ साथ में कार्बोनेट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड को पूरा न्यूट्रलाइज करेगा और कार्बोनेट को आधा करेगा। बचा हुआ आधा कार्बोनेट क्या करेगा? वो मिथाइल ऑरेंज कर लेगा। तो फिनोल्फथालीन का रीडिंग ज्यादा आता है, right? More than half of the methyl orange even. Then also your carbonate and hydroxides are present. और उसको कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम लेना है, वो ये वाला वॉल्यूम लेना है 2p minus m and 2m minus p, राइट? ओके, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला, ये आपको लगता है ये फॉर्मूला आए कहां से सारे? 2p minus m और 2m minus p, ये फॉर्मूला डिराइव किए गए हैं सारे। बट एज इट इज नॉट देयर इन योर कोर्स फॉर द डेरिवेशन, ओनली यू आर गिवन द फॉर्मूला विद द टेबल, राइट?
अगर किसी को इंटरेस्ट है कि ये कैसे आता है मुझे जानना है, यू कैन जस्ट रेफर शशि चावला's बुक, नो प्रॉब्लम, उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, लास्ट केस। चलिए, फिर से मैंने सैंपल लिया, फिनोल्फथालीन डाला, और उसमें मैंने आपका कलरलेस आ गया मेरा फर्स्ट रीडिंग ए। उसके बाद मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला, उसमें मैंने टाइट्रेशन किया, ऑरेंज कलर आया, तो मेरा रीडिंग आ गया फिनोल्फथालीन से मिथाइल ऑरेंज का दूसरा रीडिंग आ गया। लेकिन मिथाइल ऑरेंज का रीडिंग मेरा ज्यादा आया, फिनोल्फथालीन का रीडिंग से ज्यादा आया, इवन हाफ करता हूं तो भी ज्यादा आ गया। इट मींस क्या हुआ कि फिनोल्फथालीन कम यूज हुआ, मिथाइल ऑरेंज ज्यादा यूज हुआ। तो ये कब हो सकता है? सिंपल सी बात है कि जब मेरा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होगा तब। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट को तो मिथाइल ऑरेंज करेगा ही करेगा, लेकिन कार्बोनेट में से बाइकार्बोनेट जो बनता है, कार्बोनेट में से बाइकार्बोनेट जो बनता है, वो भी आपका मिथाइल ऑरेंज से ही टाइट्रेट होगा ना। तो इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज रीडिंग विल बी मोर, फिनोल्फथालीन रीडिंग विल बी लेस। आगे के केस में क्या था? फिनोल्फथालीन रीडिंग वाज मोर एंड मिथाइल ऑरेंज रीडिंग वाज लेस। अभी हम आज का रीडिंग देखते हैं। आज का रीडिंग हमारा आया है 3.2 एंड बी रीडिंग इज 9.5। तो ये केस कौन से रीडिंग में बैठता है? तो देखो, बी को हाफ करना है हमेशा, बी को हाफ करो, तो बी का हाफ क्या होगा? 4.9 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 4.75, राइट। और ए रीडिंग क्या है? 3.2। अब कौन सा इसमें से बैठता है? 1 2 3 4 5, कौन सा बैठ रहा है यहां पर बताओ? रिलेशन कौन सा बैठ रहा है? 3.2 इज लेस देन 4.7, हाफ ऑफ द रीडिंग से भी कम है। इट मींस हियर इट इज P लेस देन M बाई 2 है, या तो 2P इज लेस देन M, चलेगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। सो पांचवा वाला बैठ रहा है, तो मेरा अल्कलिनिटी का टाइप क्या होगा? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट। और ये देखो, कैलकुलेशन भी ऐसे ही है, हमने फिनोल्फथालीन का रीडिंग डबल किया था, यस, मिथाइल ऑरेंज में से फिनोल्फथालीन का डबल रीडिंग माइनस किया था, तो हमको बाइकार्बोनेट आयन मिला, यस। एंड बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है, या आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बाय डिफॉल्ट सोडियम की अल्कलिनिटी लेनी है। मतलब बाइकार्बोनेट का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और कार्बोनेट का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अनलेस अंटिल इट इज गिवन कि नहीं इसमें KOH है, तब ठीक है, तो उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट लेना है, ठीक है। सो आई होप ये 5 केस एकदम दिमाग में बैठ गए। जैसे कि मैं आपको एक रीडिंग देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रीडिंग दे रहा हूं कि ए रीडिंग इज 5 ml एंड बी रीडिंग इज 30 ml। तो इसमें, इस केस में अल्कलिनिटी कौन सी बनेगी बताइए? विच अल्कलिनिटी विल बी एप्लीकेबल हियर? टेल मी। ए और बी का रिलेशन बताइए, और उसके बाद मुझे बताइए कि कौन सी अल्कलिनिटी बैठेगी। देखो, बी का हाफ करो तो 30, 15, और 5 इज लेस देन 15, तो अगेन पांचवी बैठ रही है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। इफ आई एम चेंजिंग दिस, इफ ए इज 4 ml एंड बी इज 7 ml, अब बताओ मुझे कौन सी अल्कलिनिटी बैठेगी? ए इज 4 ml, इसका, और बी 7 ml है, तो बी 7 ml है, इसका आधा करो तो 3.5 ml। नाउ हियर योर अल्कलिनिटी इज A is greater than 1 by 2B. That means P is greater than 1 by 2M. That's why फोर्थ नंबर का अल्कलिनिटी बैठेगा, राइट। तो ये टेबल 1 मार्क में कैसे पूछा जा सकता है बताओ? 1 मार्क में पूछा जा सकता है
कि अगर मेरा P ग्रेटर देन 1/2m है अल्कलिनिटी रिलेशन, विच आयंस कैन बी पॉसिबल, तो कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर मेरा सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन आता है, प्रेजेंट है, तो P और M का रिलेशन क्या आएगा, तो बोलो P इज इक्वल टू 0 एंड ओनली M विल गिव यू द रीडिंग्स, राइट। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि M-2P किस आयन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एंड इन विच कंडीशन, 2 मार्क का क्वेश्चन। तो पहला M-2P is the formula for the calculation of bicarbonate in the condition where P is less than 1/2m। तो ये पूरा टेबल आपको ऐसे दिमाग में पूरा छाप देना है, कहीं से भी कैसा भी पूछते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, देखो हर बार ऐसा नहीं होता है कि P is less than 1/2m, राइट। कभी कभी ऐसा बोलते हैं 2P is less than m, तो कौन सी कंडीशन है, 2P is less than m, ऐसा भी पूछ लिया तो आपको आना चाहिए कि इट इज कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, राइट। ऐसा भी पूछ सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, देर आर लॉट ऑफ गिमिक्स और ट्रिक्स टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट, और ये जनरली इसमें से, ये सेगमेंट में से क्वेश्चन आएगा ही 110%, राइट। तो प्लीज ये आपको परफेक्टली आना चाहिए। ओके, पूरा समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ पहले। ये सर पांचों, यस, सर इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट P इज इक्वल टू 0, ओके, सर उसमें अगर जैसे हम प्रैक्टिकली थिंक करें तो हम जैसे उसमें जब फिनोल्फथालीन डालेंगे तो वो रीडिंग ही नहीं आएगा ऐसा? कलर ही नहीं आएगा, कलर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन का पीएच क्या होगा, 7 से 8। यस सर। 7 से 8 में फिनोल्फथालीन वर्क ही नहीं करता है, कलर ही नहीं देता है, तो आपका कलर ही नहीं ओके आएगा। So it is very ओके clearly, indicated that here only methyl orange will work. Phenolphthalein is useless for this case, right? Okay. Any more question? सर Yes. सर पी को हम फिनोल्फथालीन लेंगे और एम को हम मिथाइल ऑरेंज लेंगे ना सर? Yes. Definitely. ओके सर। P और M का रिलेशन दिखाया है, हम पूरा बार बार फिनोल्फथालीन इक्वल टू मिथाइल ऑरेंज ये नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए इसको सिंबलाइज कर दिया, सिंबलाइज कर दिया है। P stands for phenolphthalein, M stands for methyl orange, that's all, right? Okay. अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। डिफाइन अल्कलिनिटी, सबसे पहले हमने शुरुआती वहीं से किया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी इन वाटर, वो भी आपका फर्स्ट स्लाइड में ही था, राइट, कि एक्वेटिक एनिमल्स को पीएच मेंटेन करना पड़ता है और इसीलिए अल्कलिनिटी मेजरमेंट जरूरी है, डिटर्मिनेशन करना जरूरी है। इवन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट ड्रिंक मोर अल्कलाइन वाटर, अदरवाइज उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट हो जाएगा आपका बोन्स का, आपके बोन्स जो है ब्रिटल हो जाएंगे ज्यादा बेसिक चीजें खाओगे तो, राइट। इसलिए इसका यूज, मतलब इसका डिटर्मिनेशन इन द ड्रिंकिंग वाटर और एक्वेटिक वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज अगेन सेम, ऑन व्हाट फैक्टर ऑफ चॉइस द चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स आर डिपेंडेंट, तो इट इज पीएच। पीएच वैल्यू पे ही तो पूरा चॉइस ऑफ इंडिकेटर होता है ना, राइट। ओके, why two indicators namely phenolphthalein and orange are selected for determination of alkalinity? Which indicator is used first? Why? पूरा बताया मैंने। To separate the carbonate and bicarbonate, we have to use phenolphthalein and methyl orange because they both have different pH range, right? And we have to use first phenolphthalein and then methyl orange, because if we use first methyl orange, we will not get the A reading. Reading A नहीं मिलेगा हमको. We will get only direct reading B, and that is your total alkalinity. तो फिर बाकी का कहाँ निकालोगे? And that is the reason why you cannot change the sequence of phenolphthalein and methyl orange.
you have to first use phenolphthalein followed by the methyl orange, right? Next, which anions are responsible for alkalinity? Three anions: bicarbonate, carbonate, and hydroxide. And why OH and bicarbonate cannot remain present at the same time? Because it gives carbonate and water. So ultimately वो कोई meaning नहीं रहता है दोनों का, right? And then the sixth question is the structure and pH range of phenolphthalein and methyl orange. ये आपको गूगल से लाना है. अच्छा, pH रेंज तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन स्ट्रक्चर आपको गूगल से निकालना है, as you have done in your hardness practical, right? क्लियर हो गया कि नहीं एकदम? अच्छा, लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल. अच्छा, ये न्यूमेरिकल अभी मैंने आपको इतना पूरा टेबल समझाया. अब ये न्यूमेरिकल को आप मुझे बता सकते हो क्या है? 10 ml की जगह यहाँ 50 ml लिया है, राइट? सेम वे एज यू हैव डन इन योर हार्डनेस. तो टाइप ऑफ अल्कलिनिटी बताना है ये रीडिंग के ऊपर से. मुझे बताओ जरा, टाइप ऑफ अल्कलिनिटी क्या है इसकी? फटाफट बताओ. चलो, कौन से केस में बैठता है ये? फोर्थ केस. फोर्थ केस. इट मींस you want to say P is greater than 1/2 m, right? Yes, correct. क्योंकि 27.8 का अगर आधा करोगे तो 14.9 आएगा. एंड द रीडिंग ऑफ phenolphthalein is 14.6, correct? तो 14.6 is greater than 14.9. Very correct. So which ions are possible? कौन सी अल्कलिनिटी होगी आपकी? अल्कलिनिटी ड्यू टू विच आयंस? यस, कौन से आयन की अल्कलिनिटी है ये? कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड. वेरी सिंपल, आपका कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है ये देखो, P greater than M is हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट. तो अब आपको कैलकुलेशन के लिए जो वॉल्यूम लेना है, राइट, HCl का, वो क्या लोगे आप? 2P minus M फॉर हाइड्रोक्साइड एंड 2M minus P फॉर द कार्बोनेट. रिमेंबर दैट, ये वॉल्यूम लेना है. एंड हियर व्हेन यू विल कैलकुलेट द ग्राम पर लीटर, यू विल टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलिकुलर वेट NaOH 40 का होता है ग्राम पर मोल, एंड इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बोनेट 106. बट इक्विवेलेंट वेट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा कार्बोनेट का, दैट इज 53. बाकी का सारा प्रोसेस तो सेम ही है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, इसमें P is greater than 1/2 m, so the alkalinity is due to carbonate and hydroxide. और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मालिटी, राइट? आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं? सर प्लीज आप रिपीट कर देंगे एक बार. क्या रिपीट करूं? यही क्वेश्चन तो शुरू से. See, your 14.6 is a phenolphthalein value and 27.8 is your methyl orange value. तो आपको पहले वो 5 केस के अंदर बिठाना है कि मेरा रीडिंग कहां आता है. तो 14.7 is less than half of the methyl orange, that is 27.8, that is 14.9. तो मेरा ग्रेटर देन हाफ m में आ रहा है, तो मेरा पहले एस्टेब्लिश करूंगा कि अल्कलिनिटी किसकी है. तो इसके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होंगे. सबसे पहले आपको अल्कलिनिटी डिफाइन करने के मार्क होंगे, मतलब कौन सी है, तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है, तो ये 1 मार्क वहां पर मिलेगा आपको. और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर 1 मार्क आपको क्या करना है, नॉर्मालिटी निकालनी है, और 1 मार्क फिर आप ग्राम पर लीटर निकालोगे, उसका मिलेगा. नॉर्मालिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ HCl कौन सा यूज करेंगे हम? N1V1 N2V2. तो वॉल्यूम ऑफ HCl हम क्या यूज करेंगे? 2P minus M फॉर हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड कार्बोनेट्स के लिए 2M minus P यूज करेंगे, राइट? और उसके ऊपर से हम नॉर्मालिटी निकालेंगे.
Once the normality is calculated, then you have to calculate the gram per liter. Gram per liter is nothing but normality into equivalent weight. Now, sodium hydroxide is a monovalent compound, so equivalent weight and molecular weights are same. So we will multiply the normality with 40. But sodium carbonate is divalent compound, so equivalent weight will be half of the molecular weight. Molecular weight 106 है, उसका half 53 है. So normality of this carbonate will be multiplied by 53. That normality will be calculated by taking this volume of HCl 2m minus p. ठीक है, दोनों की अलग अलग हमने किया ना, कैलकुलेशन किया ना यहाँ पर, N1V1 इक्वल टू N2V2. तो जैसे हमने यहाँ पर 2p लिया, यहाँ पर हमने b माइनस 2a लिया, वैसे ही यहाँ पर हमको क्या लेना है, ये वॉल्यूम्स लेने हैं. 2p माइनस m फॉर हाइड्रोक्साइड एंड 2m माइनस p फॉर कार्बोनेट. यहाँ 2p माइनस m लेंगे, यहाँ पर 2m माइनस p लेंगे. बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है, एग्जैक्टली सेम है. राइट? आ गई बात समझ में भाई? यस. यहां पर आपको V1 जो है वो 50 ml लेना है. यस, करेक्ट, क्योंकि 10 ml लिया हुआ है. राइट? यहां पर आपको V1 10 ml नहीं लेना है, याद रखना, बिकॉज 50 ml इज गिवन इन योर क्वेश्चन. आपको जो वॉल्यूम जो है वो आपको क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से लेना है. दैट्स ऑल. करेक्ट, यू आर राइट जयवीर.